خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسکولوں میں زیر تعلیم 14 لاکھ بچے صحت کے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ بچوں کی ہیلتھ پروفائل میں 14 لاکھ بچوں میں نیوٹریشن کی کمی کا انکشاف ہے۔ اسکول نیوٹریشن پروگرام کے تحت کمزور بچوں کو طبی سہولیات دی جانی تھی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مابین معاہدہ طے پایا تھا۔ پنجاب کے 14 لاکھ بچوں کو صحت کی بنیادی سہولیات مہیا نہیں کی جا رہی۔ ہیلتھ آفیسر نے ہر ماہ اسکولوں کا دورہ کر کے بچوں کی پروفائل تیار کرنا تھی۔ اب تک کسی ہیلتھ افسر نے اسکولوں کا دورہ کر کے رپورٹ تیار نہیں کی تھی۔ منصوبے میں ناکامی پر بچوں کو صحت کی سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ بچے آنکھوں، سانس، نیوٹریشن، غیر معیاری ڈائٹ جیسی مسائل کا شکار ہیں۔ سرکاری اسکولوں کے 1 کروڑ بچوں کا ہیلتھ پروفائل تیار کر لیا۔ اسکول ایجوکیشن منصوبہ پر مزید کام جاری ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اسکولوں میں زیر تعلیم 14 لاکھ بچے صحت کے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ بچوں کے ہیلتھ پروفائل میں 14 لاکھ بچوں میں نیوٹریشن کی کمی کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اسکول نیوٹریشن پروگرام کے تحت کمزور بچوں کو طبی سہولیات دی جانی تھی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مابین معاہدہ طے پایا تھا۔ پنجاب کے 14 لاکھ بچوں کو صحت کے بنیادی سہولیات مہیا نہیں کی جا رہی۔ ہیلتھ آفیسر نے ہر ماہ اسکولوں کا دورہ کر کے بچوں کی پروفائل تیار کرنا تھی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید ریاض سے۔ جی جنید بتائیے گا۔ اسکولوں میں ہیلتھ پروفائل پروگرام شروع کیا گیا تھا، جس کے مطابق ہر بچے کا ہیلتھ پروفائل مرتب کیا جانا تھا، اور ہیلتھ پروفائل مرتب کرنے پر یہ ثابت ہوا کہ تقریباً 14 لاکھ بچے پنجاب بھر میں جو نیوٹریشن کے پرابلم سے دوچار ہیں۔ کسی بچے کی آنکھ جو ہے وہ کم ویک ہے، کسی کو ڈائٹ کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے، اور کوئی ڈائٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کے قد نہیں بڑھے، اور دوسرا بھاری بھرکم بیگ کی وجہ سے بھی بچوں کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ان کی تعداد 14 لاکھ تھی۔ اور ان بچوں کو محکمہ ہیلتھ کی جانب سے سہولت یہ فراہم کی جانی تھی کہ ہیلتھ آفیسر نے اسکولوں کا وزٹ کرنا تھا، اور ان بچوں کی صحت کا معائنہ کر کے اچھی ڈائٹ اور ان کو آنکھوں کے مسائل کے حوالے سے ادویات اور اینکیں فراہم کی جانی تھی، لیکن ابھی تک اس پر کوئی ورکنگ نہیں ہوئی، اور جو طلبہ ہیں جن کی تعداد 14 لاکھ ہیں وہ مسائل سے دوچار ہیں، اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی منفی اثرات ان پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اور یہ MOU سائن کیا گیا تھا صوبائی وزیر تعلیم مراد راز نے محکمہ صحت کے ساتھ، اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی اس پر دستخط کیے تھے، لیکن ابھی تک اسکولوں میں یہ بنیادی صحت کی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے بچے مزید بیمار ہو رہے ہیں، اور ان کی نیوٹریشن کے حوالے سے مسائل جو ہیں مزید بڑھ رہے ہیں۔ 14 لاکھ بچے نیوٹریشن سے خیر ہے۔ بہت شکریہ جنید، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں نئے پاکستان کا غریب دوست پروگرام بند کرنے کی تیاریاں۔ کم آمدن والے افراد کے لیے احساس راشن پروگرام بند کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے احساس راشن پروگرام کو بند کرنے کی سفارشات کر دی ہیں۔ احساس راشن پروگرام پر شہریوں کو اشیاء خورد و نوش پر 30% سبسڈی دی جاتی ہے۔ احساس راشن پروگرام کے تحت رجسٹرڈ دکان سے اشیاء کی خریداری پر سبسڈی دی جا رہی تھی۔ کم آمدن والے افراد کو مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ احساس راشن پروگرام کے تحت رجسٹریشن کے لیے ویب پورٹل بھی بنایا گیا۔ احساس راشن پروگرام کے تحت پنجاب حکومت وفاق سے 9 ارب روپے وصول کر چکی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے پاکستان کا غریب دوست پروگرام بند کرنے کی تیاریاں۔ کم آمدن والے افراد کے لیے احساس راشن پروگرام بند کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے احساس راشن پروگرام کو بند کرنے کی سفارشات کر دی ہیں۔ احساس راشن پروگرام پر شہریوں کا اشیاء خورد و نوش پر 30% سبسڈی دی جائے گی۔ اسی پر بات کرتے ہیں علی رامے سے۔ جی علی بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ احساس راشن پروگرام جو ہے وہ PTI کے حکومت میں شروع کیا گیا تھا، اور اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ کم بڑے افراد کو سبسڈی جو ہے وہ دی جائے گی، اس کے خدمات کی خریداری کرتے۔ اس کے بعد ایک ویب پورٹل بھی بنایا گیا، اور مختلف جو دکانیں ہیں کریانے اسٹور ان کو رجسٹر بھی کیا گیا احساس راشن پروگرام کے تحت، کہ اگر کوئی جس میں شہری نے کیا ہوا اپنے آپ کو، وہ اگر کسی رجسٹر دکان سے اگر سامان خریدتا ہے تو اس کو 30% سبسڈی جو ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے دی جائے گی۔ تو یہ کیونکہ حکومت پاکستان کا پروجیکٹ ہے وہ پنجاب میں کیا گیا، اور اب پنجاب میں اس کو وڈرا کرنے کی سفارشات کی تمام ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور یہ باقاعدہ ایک سمری عوامی وزیر پنجاب کو اطلاع کی گئی جس پروگرام کو وڈرا کیا گیا اور بند کر دیا گیا، کیونکہ پنجاب میں پہلے ہی حکومت سبسڈی کا پروگرام دے رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی کیونکہ 9 ارب روپے کا فنڈ وفاقی حکومت نے پنجاب کو دیا ہوا تھا، اور اس کے تحت جو ڈویژنل بورڈ کے پر یہ فنڈ کی کٹوتی ہے وہ بھی واپس لی گئی، اور اس پروگرام کو بند بھی کیا گیا۔ اب یہ اپنی فیصلہ وزیر پنجاب کریں گے، تو اس سے کابینہ کا اجلاس ہے وہ بھی کال کیا جائے گا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد اس پروگرام کو بند
एहसास राशन प्रोग्राम को बंद करने की सिफारिशात। बहुत शुक्रिया अली रामे, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल कर और आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 206 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर 205.16 रुपए से बढ़कर 206 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं डॉलर के रेट के हवाले से कि इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 206 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर 205.16 रुपए से बढ़कर 206 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि डॉलर के रेट दिन ब दिन ज्यादा होते जा रहे हैं। इंटरबैंक की बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा हो गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉलर 206 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर 205.16 रुपए से बढ़कर अब 206 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पंजाब असम्बली बजट इजलास के मामले पर एक और तारीख रकम। वजीर खजाना बजट तकरीर पंजाब असम्बली के बजाय ऐवान इकबाल में करेंगे। तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही वक्त दो जगहों पर बजट इजलास मुनक्किद हो। ऐवान इकबाल में बजट इजलास के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इजलास दोपहर 2 बजे डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी की जेर सदारत शुरू होगा। इजलास के लिए वजीर आला सेक्रेटेरिएट से सामान भी पहुंचना शुरू हो गया है। ऐवान इकबाल में प्रेस गैलरी और ऑफिशियल बनाने का अमल जारी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली बजट इजलास के मामले पर एक और तारीख रकम है। वजीर खजाना बजट तकरीर पंजाब असम्बली की बजाय अब ऐवान इकबाल में करेंगे। तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही वक्त दो जगहों पर बजट इजलास मुनक्किद हो। खानेवाल शहरों गिरदोनवा में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। खाद सेल पॉइंट्स पर काश्तकारों की लंबी कतारें। काश्तकारों का कहना है कि हजार दिन कतारों में खड़े रहने के बावजूद खाद नहीं मिलती। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। नवाब में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। इस वक्त में खानेवाल खाद पॉइंट सेल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि काश्तकारों की एक बड़ी तादाद खाद के असूल के लिए यहाँ सब पहुँची है। तो हर तरफ लाइनें दिखाई देती हैं। अगर आप मेरे पस मंजर में देखेंगे तो काश्तकारों की एक बहुत बड़ी लाइन जो है वो इधर दिखाई दे रही है। अगर इसी तरह मैं बात करूँ तो अपने दाएं जानिब तो यहाँ पर भी हमें काश्तकारों की एक बड़ी लंबी लाइन दिखाई दे रही है, जिनका ये कहना है कि सुबह से वो यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं और 2 बोरी खाद के लिए उन्हें शिद्दत की गर्मी में लाइन पे लगाया गया। मजीद हम बात करेंगे, मतलब काश्तकार मौजूद इनसे जानेंगे। जी बताइएगा, किस वक्त से आए हैं और खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है? सर सुबह 7:30 बजे से हम घर से आए हुए हैं, तो ये 9 बजे से पहले ये काम नहीं शुरू करते। फिर 2 बोरियां रोजाना देते हैं, धूप में आते हैं 2 बोरियां जी 2 बोरियां। अब हमारी काश, जब मेरी काश 10 एकड़ है तो मैं 10 एकड़ 2 बोरियों को अब मैं क्या करूं, कहाँ डालूं उसको? तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमारा तो हाल ये है, धूप में खड़े हैं, ना कोई छांव का, ना पानी का बंदोबस्त है, ना कोई छांव का बंदोबस्त है। जी धूप में खड़े हैं, एक जानिब खाद नहीं मिल रही, दूसरी जानिब फसल जो है वो तबाह हो रही है। तो मजीद हम किस काश्तकार से बात करेंगे, इस हवाले से जानेंगे। जी आप बताइएगा कि खाद नहीं मिल रही तो फसल को क्या नुकसान है? नुकसान है फुल टाइम खाद का, और ये खाद देने रहे फसल नुकसान, और ये टाइम गुजर रहा है। आगे पैदावार में भी पैदावार में भी कमी हो रही है। एक और काश्तकार हमारे से मौजूद है। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, हुकूमत क्या इंतजाम कर रही है? हुकूमत का कोई इंतजाम नहीं है। सुबह 5 बजे बैठे हुए हैं, आप आए हैं 9:30 बजे। 9:30 बजे अपने टाउटों को तनख्वाह दे रहे हैं खाद, किसी को बगैर कोई तनख्वाह 1 गट्टू कोई 2 गट्टू दे रहा है। इस तरह हमें परेशान कर रहा है, मुस्तकिल तीसरे दिन से परेशान करे। परसों मिली नहीं है, कल 2 गट्टू मिले, आज मिले हैं, तो सुबह से परेशान हो रहे हैं। ये सुबह से परेशान दिखाई दे रहे हैं काश्तकार। उनका कहना यह है कि यूरिया खाद ना मिलने की वजह से उनकी फसल मुकम्मल तबाह हो रही है। दूसरी जानिब ज़ेर इंतजामिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि सेल पॉइंटों पर खाद दस्तयाब है, लेकिन हकीकी सूरत हाल ये है कि काश्तकार सुबह से लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि शाम को लौट जाएंगे तब भी यूरिया खाद नहीं मिले। यूरिया खाद की किल्लत से जिनास का बहरान पैदा होने का खदशा है। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल इस तफसील का। हुकूमत पंजाब का गंदम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए जिलाई बंदी का फैसला। डिवीजन के 4 इजला के खारजी रास्तों पर नाके कायम कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी फूड पंजाब नादिर चट्ठा की सदारत में इंतजामिया और पुलिस का इजलास हुआ। कमिश्नर आमिर खटक, डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू और डिप्टी कमिश्नर्स की शिरकत। हुकूमत पंजाब की तारीखी सब्सिडी हर सूरत अवाम तक पहुंचाएंगे, ऐसा कहना था सेक्रेटरी फूड पंजाब का। बगैर परमिट गंदम का 1 दाना जिला से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा कहना था नादिर चट्ठा का। डिवीजनल इंतजामिया महकमा फूड को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी। कमिश्नर शहर ओलिया में सस्ते आटे की 700 से जायद पॉइंट्स कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर गंदम जखीरा अंदोजी पर लाखों रुपए जुर्माने और 10 फ्लोर मिल सेल की गई हैं। सेक्रेटरी फूड पंजाब का
डिवीजन इंतजामिया की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब का गंदम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए जिला बंदी का फैसला। डिवीजन के चारों अजला के खारजी रास्तों पर नाके कायम कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी फूड पंजाब नादिर चट्टा की सदारत में इंतजामिया और पुलिस का इजलास हुआ। कमिश्नर आमिर खटक, डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू और डिप्टी कमिश्नर्स की शिरकत हुई। हुकूमत पंजाब की तारीखी सब्सिडी हर सूरत अवाम तक पहुंचाएंगे। बगैर परमिट गंदम का एक दाना जिला से बाहर नहीं जाएगा। नादिर चट्टा डिविजनल इंतजामिया फूड को मुकम्मल मुआवजा फराहम करेंगी। शहर औलिया में सस्ते आटे के 700 से ज्यादा पॉइंट्स कायम किए गए हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सहूलियात की फराहमी का मिशन। कमिश्नर बहावलपुर फील्ड में इन एक्शन। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर का दौरा। रहीम यार खान, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने जिला की मजमूई सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने परिंदा मोहम्मद बना की लंपी स्किन से मुतासरा यूनियन काउंसिल का भी दौरा किया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सहूलियात की फराहमी का मिशन। कमिश्नर बहावलपुर फील्ड में इन एक्शन। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर का दौरा। रहीम यार खान। आगे बढ़े और बात करें मियांवाली में डीपीओ रिजवान उमर गोंदल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डीपीओ का कहना है कि मुनशियात और नाजायज असलहा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। मियांवाली के नए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रिजवान उमर गोंदल ने अपने अहदे के चार्ज संभाल कर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम मियांवाली आमद पर आपको खुश आमदीद कहेंगे। सर, क्या तरजीहात होंगी? सर, केपी के बाउंड्री पे मियांवाली है सर, कुछ इशूज़ भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वेलकम किया यहाँ पे। मियांवाली में मेरी पहली पोस्टिंग है और बड़ा एक डिस्टिंक्टिव किस्म के डिस्ट्रिक्ट है बिकॉज इट बॉर्डर्स केपी के, और अब तो M14 भी बन गई है जिसकी वजह से काफ़ी मूवमेंट जो है इंटर प्रोविंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। और सेकेंडली डेफिनेटली अब जो मैंने देखा है क्राइम अगेंस्ट पर्सन बहुत ज़्यादा होता है, नारकोटिक्स का भी है। तो हमारी तरजीहात जो हैं वो आज आरपी साहब भी आए थे, जो हमारी डिफाइंड हैं वो यही हैं कि हम क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है उस पर पूरी एफर्ट्स करेंगे कि इसको नीचे लाया जा सके। इस पर हमें कम्युनिटी की या के लोकल लोगों की सपोर्ट दरकार होगी जिसमें दरीना दुश्मनियाँ हैं, ताकि उसको हम ख़त्म कर सकें। नारकोटिक्स और वेपन की यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो उसके ऊपर भी एक्शन करने का हमारा है प्लान। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ द पीपल ऑफ मियांवाली हम यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट पर्सन को भी रिड्यूस कर सकें और ये जो नारकोटिक्स और आर्म्स के हैं इनको भी कम कर सकें। तो अगर हमारे ये अफसरान या हमारी जो पुलिस है डिटेक्शन रेट को इम्प्रूव कर ले और हमारे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसको भी हम इम्प्रूव कर सकें ताकि प्रोसिक्यूशन बेहतर तरीके से हो जाए, तो व्हाट आई बिलीव कि क्राइम को हम बहुत हद तक नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि क्राइम जो है वो ना सिर्फ उसको हम रोक पाएँ बल्कि जो पहले हुआ हुआ उसको भी हम वर्कआउट कर लें। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डीपीओ साहब की बात सुनी कि यही कोशिश होगी जो क्राइम है उसको रोका जाए, बल्कि इससे पहले होने वाला। मियांवाली में डीपीओ रिजवान उमर गोंदल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो आपको बताएं कि मुल्तान में हज कॉम्प्लेक्स की जानिब से फ्लाइट ऑपरेशन जारी। हज कॉम्प्लेक्स की जानिब से आजमीन हज के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे माजिद क्लासरा से। जी माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान हज कम्प्लेक्स में फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। आजमीन हज को यहाँ पर हज कम्प्लेक्स में भरपूर जो है वो फैसिलिटीज मुहैया की जा रही है। इसके साथ साथ मुल्तान से जो है वो 11 फ्लाइट्स जो है वो मदीना के लिए जो है वो रवाना होंगी। और इसके साथ साथ इंतजामात की बात करें तो इंतजामात मुकम्मल जो है वो किए गए और इसके साथ साथ आजमीन हज को यहाँ पर मालूमात भी फराहम की जा रही है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ बैंकों के काउंटर्स भी यहाँ पर कायम किए गए और इसके साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से भी उनको जो हिदायत जारी की जा चुकी है। डायरेक्टर रिहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज ऑपरेशन का जो पहला मरला होता है वो आजमीन हज की तरबियत का होता है। तो इस दफ़ा पंजाब के तमाम बड़े शहरों में तमाम आजमीन हज को एयर कंडीशन हाल में हज की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद जो दूसरा मरला होता है वो आजमीन हज की वैक्सीनेशन का होता है, जो सिलसिला अभी चल रहा है, क्योंकि मुल्तान जनूबी पंजाब से जाने वाले सरकारी स्कीम के तहत तकरीबन 3,500 आजमीन हज का इजाज़ मुक़द्दस रवानगी का सिलसिला भी शुरू है। अभी तक 8 परवाज़ें मुल्तान से रवाना हो चुकी हैं। तकरीबन 2700 लोग इस टाइम मुल्तान से मदीना मुनव्वरा रवाना हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ये 26 जून तक हज ऑपरेशन मुल्तान में जारी रहेगा। आजमीन हज यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ भरपूर तरीके से यहाँ पर इंतजामात किए गए और डायरेक्टर है रियान खोकर साहब। हज कॉम्प्लेक्स की जानिब से आजमीन हज के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया माजिद क्लासरा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
खबर शामिल कर और आपको बताएं मुल्तान से स्टेट बैंक मुल्तान में रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स मुल्तान रीजन की ज़ेर एहतमाम 200 रुपये मालियत के इनामी बॉन्ड्स की 9वीं तकरीब का कुरअंदाजी की गई है। इसी पर बात करते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक मुल्तान में रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स रीजन मुल्तान के ज़ेर एहतमाम आज 200 रुपये के इनामी बॉन्ड्स की जो है 90वीं मतलब के 90th कुरानदाजी जो है की गई है, जिसमें पहला इनाम जो था वो 7,50,000 का और बाकी 5 इनाम जो थे वो 2,50,000 के थे और बाकी 2,394 जो इनाम है वो 1,200 रुपये के हैं। इसी पर हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेविंग्स रीजन मुल्तान। किस तरह का इवेंट गुजरा और क्या कहना चाहेंगे आवाम को? इवेंट तो आपके सामने था कि इंतहाई शफाफ अंदाज में हम लोग हायर करते हैं, जो एक मिशन समझ के आते हैं, मिशनरी जज्बा समझ के। स्पेशल एजुकेशन स्कूल जो शाह रुकन आलम में वाक़या है, उनके बच्चे इसको ऑपरेट करते हैं और हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री वाकई हम मशीन इस्तेमाल करते हैं। आम आवाम उसको चेक करती है, तमाम मेंबरान उसको चेक करते हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के होते हैं और जो दूसरी हमारी डिग्निटरीज होती हैं। तो हमारा इंतहाई शफाफ ड्रा होता है और ये लोगों का गवर्नमेंट पे एतमाद है जिसका इजहार है। प्राइस बॉन्ड के अलावा हमारी दीगर भी बहुत सी स्कीमें हैं जिनमें लोग सरमायाकारी करते हैं और मार्केट से इंतहाई पुरकशिश हैं और बेसिकली लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि एक सेविंग का कल्चर डेवलप करें। जो सेविंग का कल्चर है, आपको पता है कि इंटरनल डेट का सबसे बड़ा ज़रिया नेशनल सेविंग्स है। तो जो पैसा हम आज बचाते हैं वो मुस्तकबिल में हमारे काम आता है। न्यू एडिशन करते हुए अपने खातादारों की सहूलत के लिए एटीएम कार्ड्स का इजरा किया इस साल के शुरू में, कि जैसे हमारे खातादार गर्मी में, आजकल बहुत गर्मी है, अगर नेशनल सेविंग सेंटर नहीं जाना चाहते तो वो एटीएम कार्ड लेकर पाकिस्तान में मौजूद किसी भी एटीएम से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। इसी तरह रास्त का हमने इजरा कर दिया मई के महीने से, तो हम किसी दूसरे बैंक की दूसरी ब्रांच ने भी बहुत जल्द इंशाल्लाह पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, नेशनल सेविंग की जो ऐप है वो भी जल्दी सार्फिन के लिए जो है इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी और इसके साथ साथ मजीद उनके बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।